Visible students, you all can see the screen? Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. Now my first program was bubble sorting. Bubble sorting, let us see how I'm going to write this bubble sorting ka program. Void main. Integer, I am taking say 10 numbers. And to arrange them, I require 2 for loops. Because what you are doing, you are comparing 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, those numbers in the array. And then whichever was lesser or more, you are exchanging the numbers. But in at one time, those numbers were not getting arranged. You need to repeat the process again and again. So we have seen there we require 2 for loop. One is I and second is j. And I require one temporary variable for arranging the numbers, for switching, Suppose you found out the first number is more than the second, then you have to exchange the numbers. So let us ask for the numbers. First clear screen, and then I'm telling the user enter any 10 integers. Enter any 10 integers. So I will get 10 values. But to read these 10 values, what do we require? We require this loop, right, students? What do we require is a for loop. So I wrote one for loop, and then I will be reading these values with the help of scanf %d, ampersand a of I. Till now, any students having any doubts, please raise your query. Till now. अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो, सर ये स्कैनएफ No, हमने sir. लूप के अंदर नहीं डाले. स्कैनएफ को लूप में डाल दिया ना, फॉर लूप के अंदर आ गया ना, ओके सर. आ गया ना, फॉर लूप में लिख दिया ना, इट इज इनसाइड द फॉर लूप. Because how many values you'll be reading? You'll be reading 10 values. So scanf will be repeated 10 times. Is that clear? 0 to 9. First it will Yes, start sir. from 0 and less than 10 matlab to 9. Yes. So first value will be stored at A0, second will be at A1, third will be at A2, last will be at A9. Now before I will arrange these values, I wanted to display the values what you have entered. Later on you should not tell me, sir, I only have entered the value in the arranged in the order, so a program has not done anything. So I'm displaying all your values as it is, and then I will arrange them, and then again I will display. तो पहले आपने जो दिया है मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप देख लो आपने क्या दिया है, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर, ओरिजिनल वैल्यूज. So I'm displaying the original values what you have entered. How many values you have entered? Himakshi, how many values you have entered? 10. So how many you want to display? 10. 10. So for that, what do we require? What do we require, beta? If you wanted to display something more than once, then what do you think? Do we require a loop? Yes. Hello. So what loop? I Yes. know how many I'm going to display, so I can I go ahead with the for loop? Right? Yes, हमको sir. पता है Yes, कितना sir. value display करना है, so I'll go ahead with the for loop now, and then I will write I plus plus, and then I'm going to display those 10 values. Printf %d, a of I. मतलब पहले A0 display होएगा, फिर A1, फिर A2, फिर A3 and so on. And last time you remember I had given one space, छोटा सा space, and somebody asked me, sir, why this space is there? So I am displaying all those 10 values. Next, what do I require? Now the time has come to arrange these values in the order. To arrange these, how many values will be arranging? 10 values. So I is 0, I is less than 10, I plus plus, I plus plus. For एक सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड. हेलो, गुड मॉर्निंग. अरविंद किधर से बात कर रहे हो? बोलिए ना. नहीं सर, कुछ भी नहीं. थैंक यू.
हाँ स्टूडेंट, सो आई सेड आई एम गोइंग टू अरेंज द नंबर्स. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड स्टूडेंट, बार बार कॉल आ रहा है, एक सेकेंड. हेलो, बोलो ना. देखना पड़ेगा, मैं लेक्चर में हूँ अभी. तो अपने को करना तो पड़ेगा, लेकिन ना मुझे पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था उसको. ड्यूरिंग एग्जाम टाइम उसको करना चाहिए था. मेल देखना पड़ेगा, किया होगा, मैं अभी चेक नहीं किया. कर लो यार, अपने लेवल में खत्म कर दो. अपने लेवल में खत्म कर दो, और क्या है. सफल कर दो इधर, दो चार क्वेश्चन आगे पीछे करके खत्म कर दो. हाँ वही कुछ करके खत्म. ठीक है. कॉल तो आ रहा है, मैं लेक्चर में बैठा हूँ. सौम्या करके कोई लड़की है ना? हाँ, तो कॉल आ रहा है. मैं अच्छा, तो वही कॉल आ रहा है उसका, लेकिन मैंने अभी उठाया नहीं क्योंकि मैं लेक्चर में हूँ. हाँ हाँ, ठीक है चलो. हेलो स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो i जब 0 होगा, तो i तो कहाँ से कहाँ जाएगा? i लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा. और j कहाँ से चलेगा? j टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा. मतलब अगर आपके पास में नंबर अज्यूम कर लो, लास्ट टाइम के एग्जांपल ले लो, अगर पहला नंबर 10 है, दूसरा आपका 8 है, तो j क्या करेगा? वो 10 और 8 को कंपेयर करेगा, और 10 और 8 को कंपेयर करने के बाद में 8 को ऊपर कर देगा और 10 को नीचे कर देगा. राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes. और अब मान लो 8 ऊपर आ गया, 10 नीचे चला गया, और थर्ड नंबर अब 7 है, तो फिर से अब आपको नंबर 1 यानी कि 10 और 7 को कंपेयर करना पड़ेगा. अगेन फिर व्हाट यू फाउंड आउट कि नहीं, 10 और नीचे जाना चाहिए, 7 हैज टू कम. राइट? फिर पता चला और एक नंबर 4 है नीचे, तो फिर ऐसा कंपैरिजन. सो जे क्या करेगा आपको? इट विल टेक यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी हैव सीन लास्ट टाइम. Right? But once j will reach to the last number, my numbers won't be arranged in the order. Again, I need to restart the same process once again. And again, j will start doing the same thing. Is that clear, students? Hello? है कि नहीं, मैंने क्या किया था उस दिन? Yes, sir. Yes. तो अब देखो कि क्या हो रहा है. मैं आपका if aj मतलब कौन सा नंबर है? aj नंबर कौन सा है? j कितना है अभी? आप बोलो. j is what? 0, right? 0. तो a0 चेक कर रहा है. अगर a0 is greater than a0 is greater than a1. if a0 is greater than a1, तो क्या होगा? मतलब अगर a0 में अगर 10 है और a1 में तुम्हारा 8 है, तो क्या करना चाहिए? a0 में 10 है, पहली 8 जगह ऊपर 10 है, जगह दूसरी 10 नीचे. तो पहले क्या करना चाहिए? पहले 10 को मुझे साइड में ले लेना है. जो पहला नंबर है aj में, उसको साइड ले लो. राइट? खाली करो वो जगह को. उसकी जगह पे अब कौन आएगा मेरा? aj+1 वाला आएगा, यानी राइट? आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? पहला 10 को मैंने साइड किया, 10 की जगह मैंने 8 किया, 10 की जगह 8 आया. राइट? आप समझ रहे हो? अब ये 8 की जगह कौन आएगा? हु विल कम इन द प्लेस ऑफ 8? 0. इज टेम्प. राइट? Yes, sir. आप स्वैपिंग वाला अगर प्रोग्राम अगर आपको क्लियर होगा, 2 नंबर का जब हम स्वैपिंग करते थे, फॉरगेट अबाउट दिस प्रोग्राम, 2 नंबर का जब स्वैप करते थे, तो मैंने बोला अगर ए और बी में 2 नंबर हैं 10 एंड 20, तो इनको इंटरचेंज करना है, तो पहले क्या करो? 10 को साइड में रख दो, टेम्प में गया, और बाद में 20 को 10 की जगह रख दिया, और फिर 20 के प्लेस में कौन आएगा? वो टेम्प आएगा. राइट? यही होता था ना स्टूडेंट्स?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंटिन्यू है। इसके बाद में क्या होगा, जब अगर A0 और A1 में यू फाउंड आउट कि नहीं नहीं A1 बड़ा है, सॉरी A0 इज बिगर देन A1, देन यू एक्सचेंज। बाद में फिर J चेंज होगा बिकॉज इनर लूप इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। J फिर 1 हो जाएगा और फिर ये 1 एंड 2 को चेक किया जाएगा। अगर 1 एंड 2 में भी वही है कि मान लो नंबर एट 1 प्लेस इज मोर देन द नंबर एट 2 प्लेस, राइट, A1 इज मोर देन A2, देन फिर से एक्सचेंज होएगा। अगर A2 इज मोर देन A3 फिर से एक्सचेंज होएगा, A3 इज मोर देन A4 एक्सचेंज होएगा। तो जो अगर सीक्वेंस से नंबर बढ़ा आता रहेगा वो बार बार एक्सचेंज होता रहेगा, राइट। यस नो स्टूडेंट, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन जब Yes, sir. जे एक बार खत्म हो जाएगा तो बट मेरे नंबर अरेंज नहीं होंगे, आई फिर जे को रिस्टार्ट करेगा। आई विल बिकम 1, जे विल अगेन बिकम 0, राइट। आप समझ Yes, रहे हो sir. ना? हाँ, आई Yes, जब sir. 1 होगा तो जे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान दो, अगर आपके पास 10 नंबर हैं, 10 नंबर, तो आई जे का वैल्यू लास्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है? हेलो, जे का लास्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 9, राइट। हेलो, Yes, sir. देखो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल दिया 9, जरा ध्यान देना क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जब मैंने 10 रखा था, 10, इफ इट वाज 10, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ जे इट इज गोइंग टू टेक? 9. 9। नाउ यू चेक वेदर, देन इफ में क्या होगा, इफ के अंदर में, इफ में होगा इज A9 इज ग्रेटर देन A10, इज A9 इज ग्रेटर देन A10। डू यू हैव A10 इन योर दिस वन एरे? A10 है क्या तुम्हारे पास? A10 मतलब कौन सा नंबर? A9 मतलब कौन सा नंबर था? 10th नंबर था। और A10 मतलब कौन सा नंबर है? 11th नंबर। डू यू हैव 11th नंबर? नो, No, sir. no. No. So then my J has to end up at 9. So if my J is going to end up at less than 9, what is the last value J is going to take? 8. 8. A8 मतलब कौन सा नंबर? A8 means which number? A8 means which number? 9th number, right? Because A0 is your first number. 9. 9 and A8 plus 1 मतलब कौन सा नंबर? 10. A8 plus 1 मतलब A9, A9 मतलब कौन सा नंबर? 10th नंबर, राइट। 10th. हाँ, तो जरा केयरफुल हो जाओ। सर ने आपको ये जो हाईलाइटेड लाइन है, आपको यहाँ पे लेस देन 9 क्यों किया सर ने? वाई आई डिड लेस देन 9? बोलो। बिकॉज अगर लेस देन 10 चलते हैं तो लास्ट वैल्यू जे विल टेक इज 9 and then it is going to check whether A9 is greater than A10, but I don't have A10 value in this program, right? A10 means 11th number I don't have, I only have 10 number. So I'll stop at 8. So then I'll be comparing A8 with, that is 9, 9th number, with A9, that is 10th number. Is that clear, students? Hello? Yes, Hello? sir. Now Yes. after doing this, I just have to, ये मेरा ये जो लाइन मैंने लिखा था उससे मेरा नंबर अरेंज हो गया है, एंड आई जस्ट हैव टू डिस्प्ले माय आंसर नाउ। So now I'll be saying ascending order. Ascending order. And in the ascending order, you can display the values, and then let me write the get.ch. Close this. Let us save the program. File name is bubble.c. Missing somewhere, semicolon. So I'll write the semicolon here. It is telling you to enter 10 numbers. आप कहीं पे भी 10 numbers कुछ भी enter कर दो, जो भी आपको पसंद है। आप जरा देखो आपके वैल्यू अरेंज हुए क्या। लुक एट द ओरिजिनल वैल्यू। आपने क्या दिया था? 65, 23, 54, 87, 91।
एंड नाउ असेंडिंग ऑर्डर में क्या आया है तुम्हारा? प्रॉपर है? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव एंटर्ड एंड व्हाट आई एम गिविंग, व्हाट माय प्रोग्राम इज डूइंग। माय प्रोग्राम वाज अरेंजिंग द नंबर्स इन द ऑर्डर। तो I 0 था, तो when I was 0, J has taken 0 to 9 value. When I became 1, again J has taken 0 to 9 values. When I became 2, again J has taken the 9 values, and so on. So that's how you got this. And explanation of the program I have already done last time, right? With an example, how this is going to work. Yes. Is that clear? Yes, sir. Yes. Yes. Let us again display these numbers. I'll give you an offer, like if I could arrange the number in the ascending order, you can also arrange the number in the descending order. पहले whatever you have entered, I will उसका original and उसका reverse भी I'll give you, reverse of the original value. So I'll start from 9 and I'll end up at greater or is equal to 0 and minus minus from last to first. ये मेरा reverse values है. और descending order. Next is descending order. Descending again after arranging the numbers in the order, I will say D is descending order. Descending order. Let us display the values. Enter the values. जरा आप चेक करो स्टूडेंट्स, ओरिजिनल वैल्यू आपने जो दिया था, फिर ओरिजिनल का रिवर्स मैंने प्रिंट किया, ओरिजिनल का रिवर्स मतलब उल्टा एरे मैंने प्रिंट किया, एंड देन असेंडिंग किया, फिर असेंडिंग का उल्टा किया, राइट? असेंडिंग का रिवर्स इज डिसेंडिंग. हेलो, I Yes, hope sir. you all have understood this program, right? Yes, sir. Yes. If you have understood this, I will just change the program here itself. Save as. I'll go ahead with the selection sorting. Selection dot C. I think the program is already there with me. Selection. हाँ स्टूडेंट्स, अगेन हियर यू हैव अ 10 नंबर्स. आपने नंबर लिया हुआ है. ये प्रोग्राम अभी अभी आपने देखा, जस्ट ना ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट किया है, ओरिजिनल का रिवर्स प्रिंट किया है. और यहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जस्ट आई लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कोड. सिलेक्शन में व्हाट हैपेंस, यू हैव टू स्टिक टू द वन नंबर. एक नंबर को पकड़ के रखो और वहां पे यू हैव टू ब्रिंग द मिनिमम. जैसे आपके पास 10 नंबर है तो यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट नंबर विद द सेकंड नंबर, विद द थर्ड नंबर, विद द फोर्थ नंबर, विद द फिफ्थ नंबर, विद द 6 7 8 9. फिर बाद में वो प्लेस फिक्स हो जाएगा, देन यू हैव टू टेक द नेक्स्ट नंबर फर्स्ट, मतलब प्लेस एट 1, then you have to compare that with 2 3 4 5, place at 2, you have to compare with 3 4 5 and so on. So initially when I is 0 and 0, I am checking whether this value is greater than. J will start from I plus 1. जैसे फर्स्ट नंबर को फिक्स करना है तो आपको +1 से स्टार्ट करना है. अगर आपको फिफ्थ नंबर को फिक्स करना है तो स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ नंबर. अगर आपको नाइन्थ नंबर फिक्स करना है, यू हैव टू चेक फ्रॉम 10th नंबर. राइट स्टूडेंट्स, वट एवर इज योर आई and you have to start checking from +1 say. So my first number I need to fix up, I is equal to 0, so J will start from 1 से 9 तक चेक करेगा कि भाई ये जो पहला नंबर, इज इट ग्रेटर देन A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. अगर किससे भी ग्रेटर है तो एक्सचेंज कर देना है स्टूडेंट्स. जब वो लॉक हो जाएगा, देन I will become 1 now. Then I'll be checking, is my N1, is the number at the first place is greater than 2 3 4 5 6. जिससे भी ग्रेटर होएगा हमें एक्सचेंज करना है, राइट? हिमाक्षी, एफ, Yes, sir.
समझ Yes, रहा sir. है? Yes, sir. I hope I have explained you this last time, right? Yes, sir. Yes, sir. चलो, let me run the program. Code has no effect. White has no effect. Semicolon. एक सेकेंड स्टूडेंट, जरा पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा क्या है ये, पहले का है ये, ठीक है, डिस्प्ले ठीक है, रिवर्स ऑर्डर ठीक है, इसका भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओ सर क्या? वो साइड में आए क्या है? हाँ, वही वही, उसके लिए वो परेशान है, इसको निकालना पड़ेगा। देखो, उसका वजह से प्रॉब्लम था। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप। आप देखो, नंबर आपकी ओरिजिनल लिस्ट आ रही है जो आपने एंटर किया था, फिर ओरिजिनल का रिवर्स ऑर्डर आया हुआ है, फिर उसका असेंडिंग ऑर्डर आया हुआ है, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. और वो मैंने डिले रखा था प्रोग्राम में, जो आपने पहला वाला देखा था, ये डिले है अंदर, इसके लिए डिले से प्रिंट हो रहा था यहाँ पे, जब ओरिजिनल प्रिंट हुआ है ना, सो देयर इज अ डिले हियर। ओके, आई कैन गिव द सिमिलर डिले, दूसरा भी मे बी आई कैन गिव द डिले, यू वांट डिले, वी कैन गिव डिले। डिले 500। अब यहाँ पे यू शुड हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सर ये लेस देन 9 मतलब लास्ट वैल्यू आई का क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द लेस देन 9 आई, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई? 8। 8 मतलब 8 मतलब नाइन्थ नंबर, राइट? Yes. एंड दैट यू आर कंपेयरिंग विद j इज इक्वल टू i प्लस 1। i प्लस 1 मतलब 9 हो जाएगा, बिकॉज i का वैल्यू जब 8 होगा तो j विल स्टार्ट फ्रॉम 9, सो इट विल 9, a9 मतलब, एंड a9 मतलब 10th नंबर, इज दैट क्लियर? Yes, हेलो? sir. A9 means Yes, what? sir. A0 is your first number, A1 is your second number, A2 is your third number, and so on. So J is equal to I plus 1, matlab J is equal to 8 plus 1, matlab J is 9. So it is comparing whether N8 matlab ninth number is greater than N9. N9 matlab 10th number. So his 8th number is greater than ninth number. That is, and in our language it is checking whether ninth number is greater than 10th number. If it is so, then please do exchange the value. So these are the programs which we had discussed last time. I'm giving you the ready-made programs to you all. Okay, students, what else we had discussed last time? We had discussed ascending, descending, और क्या discuss हुआ है? Hello? Hello? Yes. What else we had Yes. discussed? बच्चे बोलते ही नहीं बेचारे। I'll give you the programs right away. टर्बो सी किधर है? सिलेक्शन भी आ गया। चलो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई फॉर समथिंग न्यू नाउ।
Students, you have any doubt till now? Hello. No, sir. किसी को कुछ डाउट ही नहीं है? जरा मैं बात तो करूं. हाउ कम यू डोंट हैव द डाउट्स? प्लीज कम इन द वीडियो. चलो वीडियो में आ जाओ, सब बच्चे वीडियो में आ जाओ. लेट मी चेक इन द वीडियो. लेट मी टॉक टू यू इन द वीडियो. प्लीज